Hello guys, welcome back. Hope you all are doing absolutely fine. And before moving on to next topic, we just recall the previous one that we did in the last lecture. We have learned about motion, rest, and different types of motion, that is linear motion, circular motion, and vibratory motion, right? And we also have learned about reference point, which is used to describe the motion, and we have learned about the question that was rest and motion are the relative terms, justify, right? And we have also done scalar and vector quantities in the previous lecture. What are scalar quantities? Which have magnitude only, and vector quantities which have both magnitude as well as direction, right? So moving on to next topic, the today's topic is distance and displacement. Right? So what is distance and what is displacement? First we will learn about discuss about distance. It is the distance, we can say the distance traveled by an object is defined as the length of the actual path between the initial and the final position. Suppose we have a road, straight road. This is suppose origin, that is the initial position of an object, and suppose there is a checkpoint in the road at position A, and another checkpoint is position B, and this is the suppose direction towards south. Okay. Suppose the body is at O at 9 am. At 9:30 am it will reach suppose at A, and after some time at 11 am it reaches at B. And moreover, the distance between OA is 20 kilometers suppose, and AB is suppose 40 kilometers. Okay, and the total distance becomes OB, 40 plus 20, that is 60 kilometers. Okay, so this is the case. Suppose we have considered a bus or an object moving along a straight line in the south direction, and let O be the starting point or the reference point or the initial position, okay, of the object at 9 am, and at suppose let at 9:30 am it reaches A, and which is 20 kilometers away from the starting point, and let the object is at position B at 11 am, which is 40 kilometers from the A and 60 kilometers from the starting position, right? Okay, and next one, so we can say that the distance traveled by a body in 2 hours, 9 to 11, is 60 kilometers. We can say this. Okay, so the suppose first the body starts from the O, तो बाद में वो सपोज ए पे चली गई, बी पे चली गई, दोबारा फिर वो रिटर्न काम करके ए तक आ गई. अभी ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, अभी ये उसकी क्या है सपोज फाइनल पोजीशन है. ये जाके ये वापस आई, यहाँ खड़ी है अभी. ठीक है, तो अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना तो कैसे फाइंड करेंगे? व्हाट इज डिस्टेंस? It is defined as the length of actual path. बेटा ये वर्ड बहुत ज़रूरी है. Actual path between the initial and final position of the object. Clear?
एक्चुअल पाथ की लेंथ, कितना एक्चुअल पाथ कवर किया उसने 20 प्लस 40 60, अगेन 40 कवर किया तो कितना हो गया 60 प्लस 40 100। तो अगर हम ये केस लेके चलें तो इसमें जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ 100 किलोमीटर बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, राइट, अंडरस्टूड। सो दिस इज अबाउट डिस्टेंस। सो ऐसे हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस। क्लियर ना। अभी डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, मेजर करने के लिए वी हैव अ डिवाइस नोन एज ओडोमीटर। इट्स अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस। हमारे ऑटोमोबाइल्स है ना, जैसे वी हैव कार, स्कूटर, एक्टिवास, बाइक्स, ठीक है ना। एक्टिवा के ऊपर ना एक, अगर एक्टिवा है तो आपके ऊपर एक, वहाँ पे एक मीटर लगा हुआ है, उस पर ऐसे रीडिंग बनी हुई है। यहाँ पे नीडल होती है, यहाँ पे 0 10 20 40 60 80 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, 20 40 60 80 एंड सो ऑन। यहाँ पे नीडल है, पर नीडल के बीच में यहाँ पे ना एक मीटर लगा हुआ है, यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं उस पर। जो वो मीटर है ना, डैट इज़ ओडोमीटर। ये वाला जो नीडल वाला है इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। ये स्पीड मेजर करने के लिए होता है। पर जो सेंटर में लगा हुआ है स्पीडोमीटर बाद में करेंगे, जब स्पीड के बारे में पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी ये सुन लो, जो इसमें जिस पे नंबर लिखे हुए हैं, जिस पे रीडिंग आती है कि कितना डिस्टेंस इस व्हीकल ने आज तक कवर किया है, तो वो क्या है, ओडोमीटर है, राइट, ओके। एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड ओनली हैज़ मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। जैसे 100, मैंने बताया कितना डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। मैंने बताया किसकी तरफ है, साउथ है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, नहीं बताया ना। तो देर इज़ नो नीड टू मैंशन डायरेक्शन विद द डिस्टेंस। एंड ऑल्सो इफ यू आर नॉट मैंशनिंग एनी डायरेक्शन विद द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ एनी लेंथ, then it is always a distance, and therefore it is a scalar quantity. So this is all about distance. But displacement, अभी इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी 0, फाइनल क्या है a है, तो डिस्टेंस कितना था 100, बट इसकी डिस्प्लेसमेंट पता क्या होगी 0 और a के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 20 किलोमीटर। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज़, डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। सपोज एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, यहीं पे दे रहा हूँ। सपोज मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है। ये पोजीशन ए है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बी, तो मैं पहले ये फाइंड करूँगा कितना है, ये फाइंड करूँगा कितना है, ये फाइंड करूँगा, ये फाइंड करूँगा, सभी का मैं क्या फाइंड कर लूँगा, ऐसे ऐसे डिस्टेंस फाइंड कर लूँगा, लेंथ फाइंड कर लूँगा सभी की, सभी को ऐड कर दूँगा। सपोज़ ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, 1 2 किलोमीटर्स की बात कर रहा हूँ, 3 4, ये 2 किलोमीटर्स, सभी को ऐड कर दूँगा तो क्या आ जाएगा डिस्टेंस। बट अगर मैंने फाइंड करनी है डिस्प्लेसमेंट, तो मैं क्या फाइंड, सपोज इधर को है साउथ, इधर को है नॉर्थ, इधर को है ईस्ट, इधर को है वेस्ट, ठीक है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं मेंशन करनी पड़ती, तो हम सारा फाइंड करेंगे। पर जब मैं फाइंड करूँगा डिस्प्लेसमेंट, तो मैं ये फाइंड करूँगा डायरेक्ट बस, चाहे वहाँ रास्ता हो चाहे ना हो। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है ए से बी तक जाने के लिए, तो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। एंड वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ होगा, इसमें वो डायरेक्शन किधर है, साउथ की तरफ है, तो मैं बोलूँगा द डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस इज़ ए बी, दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिस होगी टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। तो इसमें कितनी होगी, ऐसे ही 20 किलोमीटर होगी, किधर है, टुवर्ड्स साउथ, क्योंकि ओ ए है, ए ओ नहीं फाइंड किया, ओ ए फाइंड किया है साउथ की तरफ, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। दैट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the initial and the final position of the moving object in a given interval of time, and in the direction from initial position to the final position of the object. तो डायरेक्शन हमने किस तरफ को लेनी है, इनिशियल से फाइनल की तरफ लेनी है, फाइनल से इनिशियल नहीं लेनी। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे नेक्स्ट में कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनना। अभी ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ पूरी डेफिनेशन लिखूँगा डिस्प्लेसमेंट की, ताकि आपको अंडरस्टैंड करने के लिए ईजी हो जाए और आपको एग्ज़ाम्स के लिए याद करने के लिए भी इजी हो जाए। डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन
the initial and final position of moving object in the given interval of time in the direction from initial position to the final position of the object। तो ये डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट की। बच्चे कभी लिख सकते हैं एक्चुअली इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। वो भी सही है, वो मैं नहीं बोलूँगा गलत है, पर वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं बनी। तो ज़्यादा एक्यूरेट ये है, इसमें सब कुछ क्लियर हो गया कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम है, टाइम एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में जितना होगा, एंड इन द डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। इनिशियल से फाइनल की तरफ लेना है, फाइनल से इनिशियल नहीं लेना कभी भी, ठीक है। तो याद रखना है। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड मैथमेटिकली वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट is equal to final position minus initial position, right। तो हम ये कह सकते हैं कि ये है of the object in the direction of the final position from the origin or from the initial position, ठीक है। ये याद रखना प्लीज। दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट। और अभी दो केस हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करने के लिए या ज़्यादा बेटर समझने के लिए, और है और एक चीज़ और याद रखना, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, बट इसको मेज़र करने के लिए हमारे पास कोई भी डिवाइस नहीं है। पर डिस्टेंस मेज़र करने के लिए वी हैव ऑडोमीटर, डिस्प्लेसमेंट मेज़र करने की डिवाइस नहीं होगी। जो ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। नाउ वेक्टर क्वांटिटी है because it has magnitude as well as direction in the direction of, that is why it is a vector quantity। it is denoted as s के ऊपर क्या डाल देंगे हम, वेक्टर डाल देंगे। बट जो डिस्टेंस था उसका जो मेथड है डिनोट करने का वो सिर्फ क्या है, s है। s मतलब स्पीड नहीं है, s मतलब डिस्टेंस है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी जीरो बेटा, बट please, the displacement of an object can be zero but distance traveled by the object is never zero। याद रखना ये चीज़, मैंने कल बताया था कि स्केलर क्वांटिटी कभी ज़ीरो नहीं होगी, सॉरी ज़ीरो हो सकती है बट वेक्टर क्वांटिटी कभी भी ज़ीरो, सॉरी यार मैं गलत बोल रहा हूँ, सॉरी प्लीज़ जस्ट वेट, खाद्य प्रतीत हो जाता है सुनो, मैंने कल बोला था कि जो वेक्टर क्वांटिटी है वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो ज़ीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, बट जो स्केलर क्वांटिटी है वो या तो ज़ीरो होगी या पॉजिटिव होगी। तो डिस्टेंस हमें पता है कि वो स्केलर क्वांटिटी है पर वो ज़ीरो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर बॉडी मूव करेगी तो डिस्टेंस कोई ना कोई होगा, ठीक है, तो वो पॉजिटिव होगा, वो ज़ीरो कभी नहीं होगा, बट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है। तो ये हमारा टॉपिक नेक्स्ट है जो हम कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो बट डिस्टेंस कैन नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो। हाउ विल वी जस्टिफाई दिस? सपोज एक बस है, वो ओ पोजीशन से मूव की बी तक, जैसे यहाँ ए था और यहाँ तो सेम एग्जांपल लेंगे हम, बी तक मूव की एंड देन वो बी से वापस आ गई ओ तक। ये कितना था 20, ये कितना था बेटा 40 किलोमीटर्स, टोटल कितना हो गया 60 किलोमीटर्स। और याद रखना किलोमीटर में जो के है ना इट शुड बी स्मॉल। अगर आप किलोमीटर को ऐसे लिख रहे हो तो रॉन्ग है, किलोमीटर ऐसे ही लिखा है क्योंकि किलो का सिंबल स्मॉल के है, कैपिटल के तो बेटा सिंबल बन जाएगा केल्विन का, इट इज़ राइट, इट इज़ रॉन्ग, तो ये नहीं लिखना प्लीज़। तो ये हो गया।
सपोज एक बस है, वो ओरिजिन ओ से मूव की इनिशियल पोजीशन से बी तक गई और बी से दोबारा वापस आके ओ पे आ गई, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा 60 प्लस 60 कितना होगा बेटा 120 किलोमीटर, ठीक है। बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, वी हैव डन इट नाउ ओनली, दैट डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल कहाँ पे है ओ पे, फाइनल भी कहाँ पे है ओ पे, और इसका मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो जाएं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, हमेशा ज़ीरो होगी। और डिस्प्लेसमेंट इसलिए ज़ीरो हो सकती है, अगर हम घर से स्कूल जाके दोबारा घर आ जाएं तो हमारी डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो होगी बट हमारा डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता बट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है, ठीक है, क्लियर। तो दिस बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अ बस on this road we can justify this statement that displacement can be zero but distance can never be zero, right? So next we have another statement that will always come in the paper exams to justify that distance traveled by an object is either equal or greater than the magnitude of displacement of the object। मतलब जो distance है ना वो या तो ग्रेटर होगा या उसके इक्वल होगा। इसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, उसके बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, या उससे ज़्यादा होगा पर कभी भी उससे कम नहीं होगा। बराबर भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। ज़्यादा वाला तो हमने कर लिया एग्जांपल, वो वाली बस जीरो से स्टार्ट हुई, ओ से स्टार्ट हुई, वापस जाके दोबारा ओ पे आ गई, ठीक है, ज़ीरो हो जाएगा, सेम हो जाएगा डिस्टेंस, सेम उसमें सॉरी और ज़्यादा होगा। पर सेम कब होगा, याद रखना, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल, इक्वल कब होगा मैं बता रहा हूँ, टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इफ, अगर वो बॉडी या ऑब्जेक्ट, इफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस टू मूव along a straight line। अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटा एक सीधी लाइन में जा रहा है, सपोज ओ से चला, ए तक पहुंच गया, बी तक पहुंच गया, सी तक पहुंच गया, यहाँ तक सीधे चला, ऐसे ही आया बस, ओ से ए से बी, बी से सी, वापस नहीं आया वो, तो यहाँ 20 है सपोज, ये भी 20 है सपोज, ये भी 20 है, तीनों 20 किलोमीटर्स हैं, किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर, ठीक है, टोटल कितना हो गया 60 किलोमीटर। तो ये इनिशियल पोजीशन होगी उसकी इनिशियल, ये क्या होगी उसकी बेटा फाइनल पोजीशन। तो इसमें डिस्टेंस कितना होगा 60 किलोमीटर, 20 और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट दैट इज 60 माइनस 60 फाइनल पोजीशन है, इनिशियल कितनी है 0 माइनस 0 कितना आ गया 60 किलोमीटर। तो बोथ आर सेम। तो सब भी दोनों सेम कब होंगे, इक्वल तब होंगे जब कोई बॉडी एक ही लाइन में मूव कर रही है, वो कहीं पे टर्न नहीं ले रही, अप्स एंड डाउन नहीं आ रहे, एक स्मूथ स्ट्रेट रोड पे वो मूव कर रही है, तो वो दोनों सेम होंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वापस नहीं आ रही। बट अगर वो चीज़ वापस आ गई ए पे तो वो डिस्टेंस कितना होगा 60 + 20 80 + 20 40, बट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 20 ओनली। तो यहाँ पर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला हमने पहले कर लिया था कि डिस्टेंस ज़्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से, पर इक्वल भी होता है। वो कब होता है, जब वो बॉडी एक सीधी लाइन में मूव करेगी ऑन अ स्मूथ रोड, ठीक है। तो डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। दो केसेस में 2 एग्जाम्पल्स देनी पड़ेंगे इसमें, तो वो हो जाएगा, ठीक है, ओके। एंड देयर इज एन SI यूनिट और यूनिट दैट इज SI यूनिट टू मेजर डिस्टेंस। मैंने SI की फुल फॉर्म बताई थी आपको, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस इज मीटर्स, METRE स्मॉल m, ठीक है, इट इज मीटर्स, क्लियर।
सो दिस इज़ द मेन कंसेप्ट बिहाइंड दिस। और एक चीज़ और याद रखना बेटा, एक मीटर के स्पेलिंग होते हैं METRE, एक होता है METER। क्या फ़र्क है दोनों में बेटा? ये जो स्पेलिंग है यूज़ होते हैं फॉर द यूनिट किलोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, इसके लिए मिलीमीटर। पर ये मीटर है ये यूज़ होता है डिवाइस के नेम के पीछे, जैसे ये ना ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, ये डिवाइस के लिए यूज़ होगा ER वाला। ओके, सो दिस आर द सम questions that come in paper to justify the distance, about distance and displacement. And I will also send you some difference between distance and displacement. Please learn it from the PDF files that I will send you. Now next one is, the next topic is uniform and non-uniform motion. And beta, the numericals related to this topic, that is distance and displacement, we will do it in the next lecture, but in this lecture we will first cover the theory part only. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बेटा यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए ना, अब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म इफ इट सेटिस्फाइज टू कंडीशंस। कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में तब होगा अगर वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट, इफ इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो वो यूनिफॉर्म होगा। एंड इफ सेकेंड वन इज इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal intervals of time। वो इंटरवल्स कितने भी छोटे हों, सेकंड में हो, नैनो सेकंड में हो, माइक्रो सेकंड में हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मिनट में हो, एक घंटे में हो, कोई चक्कर नहीं है, बट वो इक्वल डिस्टेंस कवर करना चाहिए, इक्वल इंटरवल्स जो हम काउंट कर रहे हैं। एंड फर्स्ट वन इज इफ इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो इसको डेफिनेशन में ऐसे ही लिखना है, बच्चे क्या लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं डेफिनेशन, an object is said to be in a uniform motion if it covers equal distance in equal interval of time। ये लिख के आ जाते हैं, बस ये नहीं लिखते, ये भी ज़रूरी है बेटा। हम बोलेंगे द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म इफ, फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे वहाँ पे, इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सेकंड पॉइंट इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, राइट। दिस इज अ वे टू राइट द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है या एक बॉल है, उस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, और वो मैं उसका टेबल बना रहा हूँ, एक टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम सपोज सेकंड में है, डिस्टेंस सपोज मीटर में है। पहले वो स्टार्ट थी तो रेस्ट पे थी, एक सेकंड बाद उसने डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर्स, 2 के बाद 20, 3 के बाद 30, 4 के बाद 40, 50 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कवर किया उसने हर सेकंड में। अगर हम देखें कि हर सेकंड में उसने 10 कवर किया है, तो ऑब्वियसली दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंस 10 इन 1 सेकंड, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 30 - 20 10, 10 सेकंड कवर किया है, 10 मीटर कवर किया है हर एक सेकंड में, तो इक्वल डिस्टेंस कवर किया है इक्वल इंटरवल में, तो हम बोलेंगे दैट इज मूविंग, द बॉल इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नेक्स्ट वन इज obviously non-uniform motion. A motion of an object is non-uniform beta first if, वो स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट तो खत्म ही है, वो तो इसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही बोलेंगे, इसमें यही बोलेंगे इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस और डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और वाइस वर्सा बोल सकते हैं, वाई, और इक्वल डिस्टेंस हो और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो, कुछ भी हो, दोनों में से एक चीज़ अनइक्वल होगी। ठीक है, तो वो बॉडी इज सेड टू बी ऑलवेज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ इसमें मैं, एग्जांपल है अ बस मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट और अ कार मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट। एक रश है बहुत मार्केट में, उसमें कार मूव कर रही है, तो कार क्या इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी हर एक सेकंड में? नहीं। सपोज पहले चली, धीरे चल रही थी, आगे आगे रुक गई, फिर धीरे चली, फिर थोड़ा फास्ट हो गई, फिर रुक गई, ऐसे होता है ना।
क्योंकि जो क्राउड है स्ट्रीट में, बहुत भीड़ है, वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, तो कार कभी भी यूनिफॉर्म मोशन पे नहीं चल सकती, ठीक है। वो होता है हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जब बस आपके स्टॉपेज से आपको उठा के चलने लगती है तो पहले स्पीड स्लो होती है, धीरे धीरे फास्ट, फिर और फास्ट, फिर और फास्ट, ठीक है। और या फिर बस आपके स्टॉपेज पे आके रुकती है, दूर से देखेंगे बहुत फास्ट आ रही होगी, फिर वो धीरे धीरे स्लो होती रहेगी, तो वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की एग्जाम्पल है। अ बस अप्रोचिंग अ बस स्टॉप और लीविंग द बस स्टॉप, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अ कार मूविंग ऑन अ हिली ट्रैक, हिल्स पे जा रहे हैं। और अ पर्सन जॉगिंग ऑन अ रोड, पर्सन जब जॉग करता है रोड पे तो कभी भी उसकी यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता, हमेशा डिफरेंट होता है, थक जाता है, स्लो हो जाता है, जब वो स्टेमिना उसके पास हो तो फास्ट हो जाता है, ऐसे करता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एंड दिस इज ऑल अबाउट today's class also. And tomorrow we will discuss some question answers related to the topics, that is numerical problems mostly related to this topic. And we will also discuss tomorrow about the speed and velocity फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, तो कल करें। कल वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा सॉल्व सारे, और मैं आपको सेंड भी करूँगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, तो वो प्लीज़ घर बैठ के कर लेना। अभी मैं आज आपको कुछ सॉल्व क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगा टॉपिक के रिलेटेड, तो उनको प्लीज़ लर्न कर लेना। अगर वो लर्न होगा तो चैप्टर ईजिली इंटरेस्टिंग लगेगा आगे भी, नहीं पढ़ोगे तो फिर ऑब्वियसली बहुत टिपिकल लगेगा चैप्टर ये वाला, ठीक है। तो बेटा 9th में थोड़ा डरने की ज़रूरत नहीं है, 9th ईजी है, हो जाएगी, बट डरना नहीं है प्लीज़। हाँ 8th से थोड़ा टफ है, ठीक है, पर साथ साथ में करोगे तो हो जाएगी, ओके। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर।